आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। धान की खरीदारी के मसले पर मरकज से वाज़े मौक़िफ़ का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS की जानिब से धरना दिया गया। धरना चौक इंदिरा पार्क में दिए गए इस धरने में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव समेत रियासती काबीना के तमाम अरकान, TRS के अरकान मुखन्नना, अरकान पार्लियामेंट, ज़िला परिषद सदूर नशीन और दीगर अहम रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। ये धरना मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए दिया गया। बादशाह TRS के वफद ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और उनको मेमोरेंडम पेश करते हुए इस मसले पर मुदाखलत की ख्वाहिश की। रियासत के साथ मरकज़ के इम्तियाजी सलूक पर TRS का एक दूसरा बड़ा एहतजाज है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद पहली मरतबा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस धरने में हिस्सा लेते हुए मरकज़ की नामुनासिब पॉलिसियों की मजम्मत की और रियासत के साथ मरकज़ के नामुनासिब इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला ने कहा कि TRS धान की खरीदारी के मसले पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ किसान पॉलिसियों और तेलंगाना रियासत के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ ये शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नए ज़रई क़वानीन और नए बिजली के कानून से दस्तबरदारी इख्तियार करे। उन्होंने इस एहतजाज को शुरुआत करार दिया और कहा कि TRS शुमाली हिंद के किसानों के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमें हमारे किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और उनके मुस्तक़बिल को महफूज बनाना चाहिए। రైతులంతా చేతులెత్తి పిడికిలెత్తాలి, ఢిల్లీ మొత్తం గదగదలాడిపోవాలి. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, తెలంగాణ రైతుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. జై జవాన్, జై కిసాన్. నశించాలి రైతు వ్యతిరేక సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ద్వారా పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రీయమైన గోదాములు వాళ్ళ దగ్గరనే ఉన్నాయి. ఇండియాలో ఏ స్టేట్ దగ్గర కూడా లేవు. మరి దాన్ని తీసుకొని నిల్వ చేసి అవసరమైతే ఎగుమతి చేసి 1,02 కోట్లు 2 లక్షల కోట్లు అవసరమైతే ఖర్చు పెట్టి రైతాంగాన్ని కాపాడాలి, ఆదుకోవాలి. ఏ దేశాలకు పంపచ్చో ఆలోచన చేయాలి. పేదరికంలో ఉన్న ప్రజలు హంగర్ ఇండెక్స్లో ఆకలి రాజ్యం భారతదేశం అని చెప్పి హంగర్ ఇండెక్స్ తెలియజేస్తూ ఉంది. నేపాల్, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ కంటే కూడా దిగజారిపోయినది ఆకలి విషయంలో అని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉంది. ఆ విషయాన్ని ఆలోచన చేసి ఎక్కడ ఏ మూలలో దేశంలో ఆహార కొరత ఉన్నా దాన్ని తీర్చడానికి సమన్వయం చేయాలి. అవసరమైతే 1 లక్ష కోట్లు 2 లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. అది చేయాల్సిన కేంద్రం చేయకుండా మొత్తం ప్రైవేట్ పరం చేస్తాం, మార్కెట్ కమిటీలు రద్దు చేస్తాం అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సోదరులారా, నేను ఒక్కటే మాట మీకు మనవి చేస్తా, నేను ఎక్కువ సమయం కూడా తీసుకోను. వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటి ధాన్యం వాళ్ళు కొనాల్సింది ఆలస్యం చేస్తే సాక్షాత్తు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర రైతాంగం తరఫున పోయి మీరు అంగీకరించిన ధాన్యమే మూలకు పడి ఉన్నదయ్యా, మీరు కొనండి అని వాళ్ళని అడగాల్సినటువంటి పరిస్థితి. గుర్తు చేసి మనతోనున్న ధాన్యాన్ని కొనుక్కోనికే బలవంతంగా మనతోన అండర్టేకింగ్ తీసుకుంటారు. పోయిన యాసంగికి సంబంధించినటువంటివే పట్టినటువంటి బియ్యమే 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇవాళ గోదాములలో మురుగుతున్నాయి, వాళ్ళు తీసుకుంటలేరు. అది అట్లుండగా వానాకాల పంటలు స్టార్ట్ అయినాయి. ఈ వానాకాలంలో 62,13,000 ఎకరాలలో తెలంగాణ రైతాంగం పంటలు వేసి ఉన్నారు. వరి ధాన్యం మీతోనే ఇంత వేసినరా, ఇంత పంట ఉందా, ఇంత పంట వస్తుందా, ఇన్ని ఎకరాలకు ఇంత వస్తుందా అని దీర్ఘాలు తీసిర్రు. కానీ వాళ్లే గతంలో పోయిన సంవత్సరం అటుపోయిన సంవత్సరంలో దేశంలో వరి ధాన్యం మేము మొత్తం కొనుగోలు చేసినటువంటి దాంట్లో సగానికి ఎక్కువ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మేము కొనుగోలు చేసినామని FCIA ప్రకటించినటువంటి విషయాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు. మీ కేంద్రమే ప్రకటించింది. అదే కేంద్రం ఇవాళ తోకా తల లేకుండా మనం పెట్టినటువంటి వరి, మన రైతులు పెట్టుకున్నటువంటి వరి 60
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस के धरने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने धरना चौक को फिनाइल से साफ किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस मकाम पर बैठकर वज़ीर आला ने ढेर सारे झूठ बोले हैं, इसीलिए ये जगह नापाक हो गई है। లాంగ్ షాట్ తీసుకోవాలి అన్న, గుంపు అట్లా కాదు, గుంపు గుంపు రాకు మెల్ల 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 కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్, కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్, కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్, పారిపోయిన కేసీఆర్ వచ్చినందుకు డౌన్ లాంగ్ షాట్ తీసుకోవాలి అన్న, గుంపు అట్లా కాదు, గుంపు గుంపు రాకు। किसानों के मसाइल अजनास की खरीदारी के मुतालबे पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से शहर हैदराबाद के बाग अम्मा से दफ्तर कमिश्नर ज़राअत तक रैली निकाली गई। ये रैली तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी के साथ सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों के साथ साथ किसानों ने भी हिस्सा लिया। किसानों से अजनास की खरीदी के मुतालबे पर बाद अज़ां ज़राअत के कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया गया। रैली के मौके पर किसानों की मुकम्मल हिमायत की गई और ये पूछा गया कि आया काश्तकारी के मसले पर हुक्मरान जमात को धरना देना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो इंदिरा पार्क पर धरना देने से पहले असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करें ताकि ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की जा सके। कांग्रेस के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस और मरकज़ की मोदी हुकूमत में माहिदा हो गया है। दोनों जमातें असल मसले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खेल खेल रही हैं। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने किसानों की हिमायत में प्ले कार्ड्स थाम कर नारेबाजी की। ఏవైతే చావులు ఉన్నాయో ఆ చావులు కేసీఆర్ చేసిన హత్యల కిందనే వాళ్ళు పరిగణించాలి। పోరాడుతుంది రైతులు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పంట, వాళ్ళకి సూటబుల్ అయిన పంట, వాళ్ళకి వైబుల్ అయిన పంట వేసుకుంటారు। తప్పనిసరిగా రబీ పంటలో ఆంక్షలు పెట్టొద్దు, ఖరీఫ్లో వరి పంట ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది। ఇక్కడ వచ్చిన మిత్రులందరికీ, మరి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారికి, సిఎల్పి నాయకులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారం తెలియజేస్తూ అందరికీ మరి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమం చేపట్టిన అందరికీ నా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। సీఎం డౌన్, సీఎం 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 మోడీ 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 సీఎం రేగడి నాయకత్వం, రేగడి నాయకత్వం। దానికి తోడు నలుగురు ఎంపీలు బీజేపీ వారు కూడా స్లోగన్ ఇవాళ మనం వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ కు మన తరఫున తెలంగాణ రైతుల తరఫున విజ్ఞాపన పత్రం ఇస్తున్నాం। రేపటి నుంచి కల్లాల్లోకి కాంగ్రెస్
ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచే కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం. ఇక్కడున్న మా ప్రతి నాయకుడు జిల్లాలలో కల్లాల్లోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్లాల్సిందే. రేపు నేను కామారెడ్డి జిల్లా పెద్దలు షబీర్ అలీ గారితో కలిసి కామారెడ్డి జిల్లాలో రైతులు పడుతున్న కష్టాలు చూడడానికి కల్లాలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమంలో భాగంగా నేను అక్కడికి వెళ్తా. ఇక్కడున్న మా పెద్దలందరూ కూడా వివిధ జిల్లాలలో ఎక్కడైతే రైతులు కష్టాలలో ఉందో, కల్లాలో కుప్పల మీద నిద్రపోతుండ్రో రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. పెద్దలే కాదు, జిల్లా నాయకత్వం, మండల నాయకత్వం కూడా కల్లాలలో ఉన్న కుప్పల దగ్గర పడుకుంటున్న కాపలా కాస్తున్న రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఈ కార్యాచరణ बहुत दुख की बात है कि मोदी और केसीआर एक ड्रामा खेल रहे हैं और तेलंगाना को किसानों को सर्वनाश कर रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि पैडी एवरी ग्रेन परचेज करनी चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत दुख की बात है कि किसानों की जो फसल है, खास तौर पर धान, उसको फौरी खरीदने की डिमांड के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर के पास कांग्रेस पार्टी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड है कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो ढोंगी है, वो नाटक कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, लेकिन ये भी ड्रामा कर रहे, ये भी रोडों पे धरना दे रहे। पब्लिक इनको सरकार चलाने के लिए दी है, रोड पे धरना बैठना अपोजिशन का काम है, लेकिन दोनों ड्रामेबाज, धोखेबाज, टीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर किसानों को के फसलों को नुकसान पहुंचाकर उनसे तमाशा करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, दोनों चोर पार्टियां हैं, इनको चाहिए कि दिल्ली वाले कहें कि हम एफसीआई से सारा धान खरीदते, और यहाँ की सरकार बोलना है कि हम इतना धान मरकज को दिलाते, नहीं दिलाए तो क्या डालना, हम क्या डाले तो आप क्या कीमत देने वाले हैं, वो स्टेट सरकार का काम है। अल्टरनेटिव फसल टाइम चले जा रहा, अभी तक 10-12 दिन लेट हो गया, अभी सोइंग होना है। तो इसलिए ये दोनों लड़कर आपस में किसानों को नुकसान करने की जो साजिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों को भरोसा दिलाने के लिए आज ये धरना कर रही है। दिन रात मेहनत करके धान उगा ले तो वो खरीदने वाला नहीं। आज हम लोग सब यहाँ पब्लिक गार्डन के ऊपर जमा है। यहाँ से हम लोग एक रैली की शक्ल में जहाँ जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज ये उसके लिए रैली है और इसके लिए मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग एक अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने सब जमा हुए हैं। आज हम लोग सब यहाँ पब्लिक गार्डन के ऊपर जमा है। यहाँ से हम लोग एक रैली की शक्ल में जहाँ जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। साबिक वजीर व बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी क़यादत से गैर मशरूत माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि केसीआर किसानों को धोखा देने के लिए आज धरना मुनज़्ज़म किया और मरकज़ पर धान ना खरीदने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि साबिक में मरकज़ की बगैर इमदाद के तेलंगाना के किसानों से अपने बल पर धान की खरीदारी का दावा केसीआर करते आ रहे हैं, मगर आज मरकज़ पर रियासत के साथ ताउन ना करने का वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। आज केसीआर उनका 7 मंत्री जो धरना किया था इंदिरा पार्क में, पहले उन्हें माफ़ी मांगना, प्रधानमंत्री जी को माफ़ी मांगना। 7 साल के अंदर जितना जो पैडी आया था 1 किलो भी बाहर नहीं बेचा इन्हें। पूरा क्रॉप मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने खरीद लिया था। 7 साल के अंदर एक दफ़ा भी केंद्र सरकार का नाम नहीं लिया था। मैं परचेज कर रहा हूँ बोल के पुकारा था, मगर अभी मालूम हो गया इन्हें परचेज नहीं किया, इसलिए माफ़ी चाहिए। झूठ का बात है, वो माफ़ी मांग रहे हैं। नंबर 2, आज मुख्यमंत्री इनका मंत्री जी ने धरना के वजह गांव जाके 45 डेज से जो पैडी वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, राइस मिलर नहीं ले रहा,
एक एक बैग के अंदर 40 kg के बैग के अंदर 2 किलो से लेके 5 किलो तक जो काट रहा है वो रोकने के लिए कोशिश करो। एक ट्रैक्टर 3 दिन 4 दिन जो अनलोडिंग नहीं हुआ था उसके लिए विदिन 24 आवर्स अनलोडिंग करने के लिए सोच लो। जो फार्मर्स के हिसाब से आप जो काम करना बोल के बता रहा है वो झूठ है, गलत है। आप एक रैतु बंधु देके फार्मर को फसल बीमा खत्म कर दिया, 1000 करोड़ रुपए पर एनम उन लोगों को अच्छा होता था मगर वो खत्म कर दिया। जो फार्म टेक्नोलॉजी उसको खत्म कर दिया। वो फार्म हाउस, वो जो ड्रिप इरिगेशन है, जो स्प्रिंकलर है वो खत्म कर चुका है। और जो शेड्स डालता है पॉली हाउसेस वो भी खत्म कर चुका है। एक बात में अगर बोलना है तो इनको प्लान ही नहीं है, इनको सिस्टम ही नहीं है, इनके सिस्टम नहीं है। जो फेल्यूर तेलंगाना आवाम को रीच होने के बाद उन्हें उल्टा ये करके वो मैं अच्छा हूँ बोलकर फोर्स करने के लिए जो रख रहा है, जो बता रहा है वो गलत है। आज भी केंद्र सरकार ने राइस परचेज करने के, राइस लेने का वो आदेश दिया है। वो काम करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर के करीब आज कशीदगी फैल गई क्योंकि एहतजाज के लिए जाने के लिए तैयार बीजेवाईएम कारकुनों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके नतीजे में उन कारकुनों की पुलिस से बहस और तकरार हो गई। इस वाक़े के सबब कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी फैल गई। मखुआ सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने धरने की बीजेवाईएम ने अपील की थी। इसी दौरान शराब के टेंडर्स के मसले पर महकमे आबकारी के दफ्तर का मुहासरा करने महिला मोर्चा ने ऐलान किया। इन दोनों एहतजाजी प्रोग्रामों की इत्तला के साथ ही पुलिस चौकस हो गई। बड़ी तादाद में पुलिस को बीजेपी के दफ्तर के करीब तैनात कर दिया गया और धरने की शुरुआत से पहले ही बीजेवाईएम कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके सबब बीजेवाईएम के कारकुनों ने पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के पेश नज़र खदीम इमारत का इंतजाम कर दिया गया। ये बात सभी जानते हैं। उसकी जगह BRKR भवन में आर्जी तौर पर सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल किया गया। ख़ास बात यह है कि पिछले 16 महीनों से यहाँ आम आदमी के दाखिले पर पाबंदी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान BRK भवन में वायरस को फैलने से रोकने के लिए आम आदमी के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। उन कवायद पर अब भी अमलावरी जारी है। हालांकि अब केसेस में कमी आ रही है और दीगर तमाम दफातर में सरगर्मियां मामूल पर वापस लौट रही हैं, लेकिन अब भी आम आदमी को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोका जा रहा है। रोज़ाना कई अफराद न सिर्फ शहर और उसके अतराफ बल्कि अजला से अपने मसाइल को लेकर सेक्रेटेरिएट से रुजू होते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट के गेट पर तैनात मुलाजिमीन पुलिस की जानिब से उन्हें अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अपनी मुश्किलात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाने के लिए दारुल हुकूमत पहुँचने वालों को मायूसी हो रही है। जहाँ एक तरफ उनका पैसा खर्च हो रहा है, वहीं वक्त की बर्बादी हो रही है। रियासत के इंतज़ामी उमूर में सेक्रेटेरिएट इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। यहाँ से रुजू होने वालों का कहना है कि सेक्रेटेरिएट का ही जब यह हाल है तो ज़िलेई सतह पर ओहदेदारान उनकी क्या परवाह करेंगे। सेक्रेटेरिएट से रुजू होने वाले बाज़ अफराद ने बताया कि ओहदेदारों से मुलाकात का मौका तो दूर की बात है, उनकी दरखास्तें तक कबूल नहीं की जा रही हैं। हालांकि सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के बाद BRK भवन में कायम आर्जी सेक्रेटेरिएट में ऑफिसर्स के लिए दफातर की सहूलत फराहम की गई, जबकि चीफ मिनिस्टर का दफ्तर बेगमपेट ऑफिस में कायम किया गया। रियासती वुज़रा के दफातर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए गए। पुराने सेक्रेटेरिएट में रोज़ाना दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे आम आदमी को दाखिले की इजाज़त थी।
उस वक्त मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज दस्तियाब हुआ करते थे। बीआर के भवन में सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के बाद कुछ दिनों तक विजिटिंग आवर्स थे और यहाँ आने वालों को अंदर जाने की इजाज़त थी, लेकिन कोरोना की वबा की शिद्दत के बाद आम आदमी के सेक्रेटेरिएट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जो अब भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि सेक्रेटेरिएट में जाने के लिए वहाँ से किसी अफसर से सिक्योरिटी अहदेदार को फ़ोन करवाना लाजमी है। यहाँ से रुजू होने वाले परेशान हाल अफराद का कहना है कि उनका इतना असर और रसूख नहीं है कि वो अंदर के किसी अहदेदार से रब्ता कायम कर सकें। बताया जा रहा है कि अगर वो इतना असर वो रसूख रखते हैं तो उन्हें सेक्रेटेरिएट आने की नौबत ही क्यों आती। सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोकने की वजह पूछने पर वहां तैनात मुलाजिम ने पुलिस ये जवाब दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, और साथ ही शिकायत कुनिंदगान से उल्टा सवाल किया जा रहा है कि आला ओहदेदारों की जानिब से अहकामात नहीं होते तो उन्हें क्यों रोकते। हालांकि हुकूमत का एक तरफ ये दावा है कि रियासत में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है और दूसरी जानिब आलमी वबा के बहाने आम आदमी को सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने से रोकना कहाँ तक दुरुस्त है। परेशान हाल लोगों की जानिब से हुकूमत के इस रवैये पर तनकीदें की जा रही हैं। टमाटर की कीमतों में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और शहर हैदराबाद में टमाटर की कीमत 50 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। आंध्र प्रदेश में पाटी कुंडा टमाटर मार्केट में फ़ी किलो टमाटर की कीमत 80 रुपये तक पहुंच चुकी है और तारीख में पहली मरतबा इस मार्केट में फ़ी क्विंटल टमाटर की कीमत 8,000 रुपये रिकॉर्ड की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ज़िले करनूल की मार्केट से न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों को टमाटर रवाना किए जाते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना के अजला के अलावा शहर के नवाही और मज़ाफ़ाती अजला से टमाटर फ़रोख्त के लिए लाए जाते हैं। दोनों शहरों के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटरों की कीमत में ज़बरदस्त उछाल देखा गया और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान टमाटर की कीमत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। रैतू बाज़ार में टमाटर की कीमत 50 रुपये था 55 रुपये के दरमियान दर्ज की जा रही है, जबकि शहर के दीगर मकामात पर टमाटर 60 था 65 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हैदराबाद में वोटर लिस्ट पर रिवीजन यानी नज़रसानी के लिए 27 और 28 नवंबर को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत आवाम अपनी मौजूदा तफसीलात में तस्हीह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। एड्रेस, उम्र, सरनेम और दीगर तब्दीलियों के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। इसके अलावा 18 साल उम्र मुकम्मिल करने वाले राय दहिंदे नामों की शमूलियत की दरख्वास्त दे सकते हैं। हैदराबाद के 15 असम्बली हल्के जात में फ़हरिस्त राय दहिंदगान पर नज़रसानी की खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि किसी भी तस्हीह के लिए दरख्वास्त देने से कबल आवाम को चाहिए कि वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट का मुसवदा अपलोड करते हुए जायज़ा लें। 1 जनवरी 2021 को 18 साल की उम्र तकमील करने वाले तमाम अफराद वोटर शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के अहल होंगे। दरख्वास्त फॉर्म 6 के ज़रिए दी जा सकती है। फ़हरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत बूथ सतह के अहदेदारों और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से अंजाम दी जाएगी। इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के नतायज जारिया माह नवंबर के अवाखिर तक जारी होने के ख़वी इम्कानात हैं। इंटर बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि जवाबी बियाजात की जांच आखिरी मराहिल में पहुंच गई है। 20 नवंबर तक जांच का काम मुकम्मल होने की तवक्को है। 25 अक्टूबर तक 3 नवंबर तक फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। रियासत भर में जुमला 4,12,000 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान के बायस क्लासेस पूरी तरह नहीं चल पा रहे थे, जिसकी वजह से निसाब को घटाकर 70% किया गया था। ऑनलाइन तालीम में भी कई मसाइल पैदा हुए थे। जारिया साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का इनेकाद बग़ैर तलबा को सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया था। सेकेंड ईयर में भी इम्तिहानात के इनेकाद में दुश्वारियाँ पेश आने पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स को अहमियत देने के लिए अहदेदारों ने ताख़ीर से इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात का इनेकाद किया। अहदेदारों का कहना है कि तलबा के इम्तिहानी नताइज इस मरतबा हौसला अफजा होने के इम्कानात हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ मकामात की तलाशी ली। तकरीबन 14 मकामात की NIA की टीमों ने तलाशी ली। जुमेरात की सुबह तकरीबन 5 बजे से उस तलाशी मुहिम का आगाज़ किया गया। आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम के टंगुटूरू मंडल के अलकोरापुडम में इनकलाबी मुसन्निफीन के एसोसिएशन वीरासम के लीडर कल्याण राव के मकान की तलाशी ली गई। साथ ही विशाखापट्टनम के
अरीलोपा कॉलोनी में वकील जोड़े श्रीनिवासराव और अन्नपूर्णा के मकान की भी एनआईए की टीम ने तलाशी ली। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के नागोल में रवि शर्मा अनुराधा के मकानात की भी तलाशी ली गई। माइलस्टोन से उनके ताल्लुकात सरकर्दा माओइस्ट लीडर आर.के. की जिंदगी पर लिखी गई किताब के सिलसिले में एनआईए की टीमों की जानिब से मालूमात हासिल की गई। ये तलाशी एक साथ ली गई। तेलंगाना और एपी पुलिस के साथ ताउन के जरिए ये तलाशी ली गई। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 35,659 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 144 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,978 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 161 अफराद ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन अब भी रियासत भर में 3,694 अफराद का इलाज जारी है। हैदराबाद के मैलार देवपल्ली में एक शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। बुधवेल रेलवे स्टेशन के करीब जंगैया नामी शख्स अपनी बीवी मीरा के साथ रहता था। कुछ दिनों से वो रोजाना आपस में झगड़ रहे थे। आज सुबह भी उनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने सर पर वजनी पत्थर डालकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और मकाम वाक़या से फरार हो गया। 19 नवंबर को तवील तरीन चांद ग्रहण होगा। माहिरीन के मुताबिक ये सदियों का तवील तरीन ग्रहण होगा, जिसकी मुद्दत 3 घंटे 28 मिनट और 24 सेकंड होगी। ग्रहण दोपहर 12:48 पर शुरू होगा और शाम 4:17 पर ख़त्म होगा। कहा जा रहा है कि ये 580 बरसों का सबसे तवील जुज़वी चांद ग्रहण है। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे देखा जा सकेगा। आखिरी मरतबा इस कदर तवील ग्रहण फरवरी 1414 में देखा गया था। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि जुमेरात की रात और जुमे को तेलंगाना रियासत के कई अजला में गरज और चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यादद्री, भुवनगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल अजला में जुमेरात की रात तेज़ बारिश होगी। इसी तरह जुमे के रोज़ नलगुंडा, सूर्यापेट, यादद्री, भुवनगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल और रंगारेड्डी में शदीद बारिश हो सकती है। इन अजला में इतवार और पीर को कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की भी पेशगोई की गई है। अहदेदारों ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के 27 अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हुई। रियासत में सबसे ज़्यादा बारिश वनपर्ती ज़िले के कुत्ता कोटा मंडल के विलियम कोंडा में 5 सेंटीमीटर, आत्माकुर में 4.08, गोपालपेट में 4.08 और अमरचिंता में 3.25 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागारत्ना के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से कम दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। आखिर में एक दिलचस्प खबर। किसी भी जानकारी को सर्च इंजन गूगल पर खोज कर शेखी जताने वाले लोग खुद को दूसरे लोगों से ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। उसके मुताबिक गूगल पर सर्च करने वाले कॉन्फिडेंस से पेश आते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को जवाब देने के लिए कुछ सवाल किए। कुछ लोगों ने अपनी मेमोरी और कुछ ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल का इस्तेमाल किया। इनमें से गूगल करके जवाब देने वाले लोग खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट मान रहे थे। रिसर्चर्स की क़यादत करने वाले एड्रीन बॉट का कहना है कि जिन लोगों ने गूगल कर सवालों के जवाब खोजे थे वो कुछ देर बाद या फिर अगले दिन उन्हीं सवालों के जवाब अपनी मेमोरी की बुनियाद पर देने में नाकाम रहे। बॉट का कहना है कि अक्सर लोग जब इंटरनेट पर सर्च करके कुछ बातों के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि उन्हें ये बातें अपनी मेमोरी की बुनियाद पर पता चली हैं। इसे एक साइंटिफिक भ्रम भी कहा जा सकता है, जबकि वो शख्स ये मानने लगता है कि इंटरनेट से जो जानकारी उसे पता चली है उसे पहले से इसके बारे में मालूम था। दरअसल लोग गूगल पर मिले ज्ञान को सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। असल जानकारी तो सर्च इंजन गूगल की मेमोरी में होती है। इसे साइंटिफिक तौर पर इंटरनल और एक्सटर्नल नॉलेज कहा जाता है। काफ़ी कुछ
ऐसा है कि कोई तालिब इल्म अपनी तालीम के जो भी तालीम हासिल करता है, जो भी याद करता है, अगर वो ये मानना शुरू कर दे कि उसे ये सब चीज़ों के बारे में पहले से पता हो, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और हो जाता है। इस स्टडी का मजमूई तौर पर यह खुलासा किया गया है कि गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, वो वीक होती है, क्योंकि वो हर बात हर जवाब गूगल के ज़रिए तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।